Hello everyone. Hi, this is Jinesh Kothai here and welcome to our video of French. So students, in this particular video, I'm going to start with chapter number 8, Faire des achats, to do shopping. CBSE 9th standard syllabus students. So before starting with the chapter, I want all of you, please subscribe to our channel if you haven't done that yet, and like the video, and please put some comment by the end, whatever you feel about the video. So students, start करेंगे directly. I'm on page number 94 of our 9th standard CBSE textbook, and the name of the chapter is Faire des achats, which means to do shopping. Chalo, so what am I going to do? I'm going to read as I've always been doing. I'm going to read and explain you the chapter part. So Akansha and Nargis vont au centre commercial pour acheter a cadeau à Pauline. So Akansha and Nargis are going to the mall. Centro Comercial it's a commercial center, okay? Basically, it's a mall to buy a gift to Pauline, okay? So basically, Pauline के लिए वो लोग एक gift खरीदने जा रहे हैं. So now there's a conversation between Akansha and Nargis. So qu'est-ce qu'on peut acheter pour Pauline? What one can buy for Pauline? I have no idea. Je n'ai pas d'idée. I have no idea. Pourquoi pas lui acheter un CD? Why not buy her a CD? She loves music. She loves music. Oui, c'est une bonne idée. Yes, it's a nice idea. It's a good idea. Je vais lui acheter le nouveau CD de Zez. I am going to buy her the new CD of Zez. And what about you? What are you going to offer her? Question mark. What are you going to offer her? So Nargis says, des boucles d'oreilles, earrings. Vernis à ongles. The vernis à ongles is basically nail paint, okay? Nail paint. or perhaps a novel. तो स्टूडेंट्स, नारगिस ने 3 आइडिया दिए. या तो हम इयरिंग कर सकते हैं, या तो फिर नेल पेंट, नेल पॉलिश, ओके, नेल पॉलिश, और मे बी अ नॉवेल. वी विल सी. सो हम लोग देख लेंगे क्या करना है, ठीक है. सो नारगिस आकांक्षा वो वेयर ले रही हो द बुजू. सो नारगिस एंड आकांक्षा आर गोइंग टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट ऑफ ज्वेलरी डिपार्टमेंट, ओके, ज्वेलरी जहां पर सेक्शन होता है वो. दे choose the earring. They choose some earrings. So Nargis, excusez-moi madame, excuse me madam, these earrings, how much do they cost? Combien coûtent-elles? How much do they cost? These euro madame, mademoiselle, so 10 euros ma'am, 10 euros. Vous les avez d'une autre couleur? Do you have them of another color? तो उसने बोला oui, il y a 3 couleurs. There are 3 colors. Blue, red and yellow. Chalo, move forward. So blue, red, yellow. So je prends le rouge. I take the red. So students, Nargis ने red color लिया यहाँ पर. Say for offer. It is to offer someone. हमको इसको offer करना है, किसी को gift देना है students. ऐसा को वो pouvez faire. Is it that you can do a gift wrapping? Wow. उसको pack करना है, but gift wrap करना है. Please. इट्स अ क्वेश्चन मार्क. नारगिस ने पूछा. किसको पूछा था? ऑब्वियसली वहां की जो एम्प्लॉय है उसको पूछा था, एम्प्लॉय को पूछा था. सो उसने क्या बोला? ओके, यस मैडम, यस मैम. तो उसने बोला ठीक है यार, गिफ्ट रैप करना तो गिफ्ट रैप कर लेंगे, कोई बात नहीं. ऐसा को वो accepter les cartes de credit? Is it that you accept credit cards? Yes of course. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, नारगिस ने पेमेंट कैसे किया है? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया. यू हैव टू रिमेंबर दिस. Merci beaucoup, c'est gentil. Thanks a lot. That's kind of you. Chalo. So let's start students with the first one. Tick the right answer. Okay, हमें right answer को tick करना है. First, Akansha and Nargis are. Grand Magaza is a big shop. और Centro Comercial is basically the mall, okay, and at the market. तो उन्होंने precisely mention किया, वो लोग mall गए थे, Centro Comercial. L.E. Sompur, they are there in order to buy a gift for the mothers. No. Buy a gift for the birthday of a friend. तो स्टूडेंट्स, हमें अब तक ये तो मेंशन नहीं किया बर्थडे, पर ये तो पक्का है कि वो अपने फ्रेंड के लिए, पोलिन उनकी फ्रेंड है, तो उनके फ्रेंड के लिए ले रहे, ये तो श्योर है. ओके, तो आंसर यही आ सकता है. याद यार, जस्ट टू एंजॉय, नहीं एंजॉय करने तो नहीं गए थे. ओके. थर्ड वन, नारगिस आशेत असेदे द जैज, उसने सीडी ली थी, नहीं.
यस, रेड कलर इयररिंग्स ली थी, रेड कलर इयररिंग्स, ओके, और मल्टी कलर इयररिंग्स नहीं ली थी। नार्गिस इज पेइंग बाय क्रेडिट कार्ड, अभी हमने जस्ट देखा शी इज पेइंग बाय क्रेडिट कार्ड, तो चेक तो नहीं था, और एस पेस मतलब कैश, नहीं नहीं, कैश से भी पेमेंट नहीं किया था। एंड से ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, पोलिन आदौला म्यूजिक व्रे, या पोलिन लाइक्स म्यूजिक, ये हमको बताया था। नार्गिस इज बाइंग अ नॉवेल फॉर, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो इयरिंग खरीदी है। एंड लास्ट, नार्गिस इज मेकिंग फेफ है, मतलब इज गेटिंग अ गिफ्ट रैपिंग फॉर पोलिन, तो यस, उसको गिफ्ट रैप करवाया था, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ग्रेट, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 पेज कंप्लीट कर दिया है। द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वाज क्वाइट इजी, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे और चैप्टर इसी तरह से बहुत एंटरटेनमेंट के साथ रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। जापरॉन, आई एम लर्निंग टू एक्सप्रेस पोलाइटनेस, तो बच्चे लोग सीखो, आपको पोलाइट रहना है, पोलाइटनेस कैसे होती है वो आपको सीखना है। सो फर्स्ट वन, nous aimerions voir des stylos, we would love to see some pens of good quality, we would love to see, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना प्रेजेंट कंडीशनल टेंस यूज हुआ है, ये जो हम आज इस चैप्टर में करने वाले हैं, प्रेजेंट कंडीशनल टेंस, so we would love to see some pens of good quality. Shavudre, I would want to buy some files, some plastic files, I would want to buy some plastic files, dossier means file होता है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये क्या होता है, कंडीशन ऑफ पोलाइटनेस होता है, कंडीशनल प्रेजेंट कंडीशन तब यूज करते हैं व्हेन यू जस्ट वांट टू बी टू मच पोलाइट टू समवन, ओके। चलो, तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट कंडीशनल टेंस बनता कैसे, आइए हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, देयर आर रूल्स रिटन ओवर योर प्रेजेंट कंडीशनल। तो रूल है, सब्जेक्ट प्रोनाउन तो आएगा स्टूडेंट्स ज यू इलेल नुवु इलेल, वो हमें ऑलरेडी पता है, प्लस फ्यूचर स्टेम्प। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर स्टेम्प हमने किया था, हमने कब किया था स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस में, अगर आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा हो तो स्टूडेंट्स ई आर का ई आर, आई आर का आई आर, और आर ई का आर रहेगा, लास्ट में हमारा क्या आएगा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ई आर, एंड प्लस एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे, और एम्पारफे की एंडिंग्स डालनी है ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई जेड, ए आई एन टी, ए आई एन टी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, चलो मैं यहीं पे आपके लिए एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेना है फ्यूमेर वर्ब, फ्यूमेर का मतलब तो स्मोक होता है, बच्चों का सबसे फेवरेट वर्ब होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आई वुड स्मोक, मुझे प्रेजेंट कंडीशन यूज करना है, तो पहले ज आएगा, फिर ई आर का फुल वर्ब आता है, तो फ्यूमेर फुल वर्ब लिखना है, ई आर का ई आर, और एंडिंग्स लगाएंगे ए आई एस, ज फ्यूमरे, फ्यू फ्यूमरे, ओके, फिर इल फ्यूमरे एल, तो फुल वर्ब लिखना है और एंडिंग्स लगानी है, कितना इजी है, फुल वर्ब लिखना और एंडिंग्स लगानी है। नू फ्यूमरॉ, फिर एंडिंग्स में क्या आएगा, आई ओ एन एस, वू फ्यूमरे, आई जेड, इज फुल वर्ब ए आई एन टी, एल्स फ्यूमेर ए आई एन टी, ओके। इसका मतलब क्या होगा, आई वुड स्मोक, यू वुड स्मोक, ही वुड स्मोक, शी वुड स्मोक, वी वुड स्मोक, यू वुड स्मोक, दे वुड स्मोक, दे वुड स्मोक, ओके। तो जब भी प्रेजेंट कंडीशन होगा इंग्लिश में, यू हैव टू यूज वुड, आपको वुड यूज करना है स्टूडेंट्स कंपल्सरीली, ओके। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कंडीशनल टेंस होता है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्यूचर स्टेम जो हम पढ़ रहे हैं, ई आर का ई आर, आई आर का आई आर, आर ई का आर, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। Yes students, I have also made another video, specifically एक वीडियो बनाया सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंडीशनल टेंस पे। तो अगर आपको लगता है नहीं मुझे प्रेजेंट कंडीशनल एकदम डिटेल में पढ़ना है विद सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइजेस, तो आप वो वीडियो पहले जाके देख सकते हो, ओके। सो देखो यहाँ पर मैंने कुछ फ्यूचर स्टेम्स के एक्सेप्शंस भी बताए, मैंने बताया आपको कि ई आर का ई आर, आई आर का आई आर, आर ई का आर होता है, बट ऐसे सब में फिक्स नहीं है, ये थोड़े बहुत इरेगुलर वर्ब्स है, इरेगुलर वर्ब्स है जिसके फ्यूचर स्टेम्स इरेगुलर है, एक्सेप्शंस है, आप उसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर लो अच्छे से बुक के अंदर। जैसे आवर का ए यू आर होता है, एत्र का एस सी आर, एस सी आर के आगे एंडिंग्स लगेंगे ए आई एस, ए आई एस, ए आई डी, ए आई डी, आई ओ एन एस, आई जेड, ए आई एन टी, ए आई एन टी, ठीक है। हम लोग करेंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर हमें कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई है, तो ये आप सिर्फ नोट्स कॉपी कर सकते हो, मैंने आपके लिए नोट्स के लिए स्पेशली ये आपके लिए बना के यहाँ पे रखा है, विच यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपी इट डाउन, ओके। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, उन्होंने भी हमें सेम बताया प्रेजेंट कंडीशन, ऑब्वियसली वो लोग हमें नया तो क्या ही बताएंगे, सेम है, उन्होंने भी ई आर एंडिंग वर्ब लिया है, फिर एंडिंग्स लगा दी, ये मेरे आई वुड लव, क्यू एमरे यू वुड लव, इल एमरे ही वुड लव, एल एमरे शी वुड लव, नूज एमेरियो वी वुड लव, वूज एमेरिए यू वुड लव, इल्स एमरे दे वुड लव, दे वुड लव। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वुलवार वर्ब है, कौन सा वर्ब लिया है, वुलवार, वुलवार मींस टू विश टू वांट होता है, वुलवार टू विश या टू वांट होता है, और उसका फ्यूचर में एक्सेप्शन है वी ओ यू डी आर, फ्यूचर स्टेम उसका स्टूडेंट्स क्या है, एक एक्सेप्शन है वी ओ यू डी आर, तो आप देख सकते हो उन्होंने वी ओ यू डी आर लिखकर आगे एंडिंग्स लगाए, ज वुदरे, ट्यू वुदरे, इल वुदरे, एल वुदरे,
Nu voudrions, vous voudriez, il voudrait, elle voudrait, I would wish, you would wish, he would wish, she would wish, we would wish, you would wish, they would wish, they would wish. ओके, तो फिलहाल हमें इस चैप्टर में प्रेजेंट कंडीशनल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. नो डाउट उन्होंने हमें यहाँ पे फ्यूचर भी लिख के दिया, बिकॉज प्रेजेंट कंडीशनल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने फ्यूचर टेंस यहाँ पर लिख के दिया है. चलो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है I am learning, j'apprends à faire des courses. I am learning to do shopping. Faire des courses and faire des achats दोनों सेम है, सिनोनिमस है, दोनों सेम है. faire des courses मतलब to do shopping and faire des achats मतलब भी to do shopping होता है. Pauline organize une soirée. Pauline is organizing an evening and she is doing some shopping. À la crèmerie. Crèmerie students at the dairy shop. At the dairy shop. Bonjour madame, je voudrais des œufs. Good morning madam, I want some eggs. I want some eggs. And cream please. And cream please. Voila, c'est tout. There it is. That's all. Voudrez-vous autre chose? Would you wish to have something else? Would you wish something else, other thing? Ah, oui. A litre de lait aussi. A little of milk also. Oh, yes. A little of milk also. चलो बच्चे लोग, आप देख रहे हो मैं आपको यहाँ पर पेज वाइज पेज एक एक चीज अच्छे सिखा रहा हूँ. And students, I have always been telling in all my videos that I'm taking a lot of YouTube Zoom lectures also. पेड Zoom lectures ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, पर्सनली बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ. अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए when it comes to a lot of other things, बिकॉज फ्रेंच में काफी सारे बच्चों को डाउट आते हैं, ग्रामर रिलेटेड आता है, उनको पेपर करेक्शन करके चाहिए होता है, पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करना होता है, काफी सारी चीजें होती है. तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा अपना मोबाइल नंबर का डाल देता हूँ, तो हम बात कर सकते हैं इसको आगे कैसे लेके जाना है. ठीक है, आगे स्टूडेंट्स एट द मार्केट. सो हमने क्या कर लिया है, एट द डेयरी शॉप देख लिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड एट द मार्केट. ओके, तो एट द मार्केट क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है, लेट्स सी. पोलिन, बोंजूर मसियर, गुड मॉर्निंग सर. तो उसने बोला बोंजूर मदमुआजेल, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है पोलिन की. ओके, मदमुआजेल इज यूज्ड फॉर एन अनमैरिड गर्ल. गुड मॉर्निंग मैम. वो डेजिरे, व्हाट डू यू डिजायर, आपकी क्या इच्छा है. Je voudrais 10 citrons. I would wish 2 lemons, है ना, नींबू. A kilo d'orange, a kilo de oignon, a kilo of onions, a kilo de tomate, 1 किलो टमाटर. Tout rouge, एकदम रेड होना चाहिए, ऑल रेड, एकदम मस्त. And 500 grams of mushrooms, please. 500 grams of mushroom, please. Voila, mademoiselle. There it is, madam. There it is, madam. J'aimerais. I would also love to have some potatoes. Pomme de terre is potato. Oui, vous en voulez combien? How much do you want it? How much do you want it? तो स्टूडेंट्स, ये EN एक नया टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले आज, EN. How much do you want it? So I am taking a kilo of it. I am taking. Je prends. EN मतलब क्या होता है, of it. I am taking a kilo of it. There it is. Thank you sir. Bye. Thank you. टाटा. ठीक है, चलो. स्टूडेंट्स, फोटो के अंदर थोड़ी बहुत चीजें दी हुई है. आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जाकर है ना गूगल कर सकते हो काफी सारी चीजें. मेज इज कॉर्न, मुझे जितना पता है, चलो मैं आप लोग के लिए टाइप कर लेता हूँ. बाकी थोड़ी चीजें अजीब भी है, मैंने सबको गूगल पे फोटोज चेक किए. पति बॉयज ग्रीन बीन्स होते हैं, आई गेस ये वटाना जैसा कुछ हो गया. शम्पिनियो तो मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स. पुआवरो इज कैप्सिकम है, यहाँ पे रेड कलर के कैप्सिकम दिए, कैप्सिकम आपको होते हैं येलो और ग्रीन कलर के भी कैप्सिकम होते हैं. राजीज रेडिश, मूली होता है रेडिश. टोमाटो तो क्या ही लिखने की जरूरत है, टोमेटो है, ये तो टोमेटो है. ये तो पम्पकिन है, पम्पकिन. स्टूडेंट्स, ये कुरगेट, यू कैन जस्ट गो एंड सी द फोटोज. मैंने देखा काफी अलग था. ब्रोकोली तो हमें पता है, ब्रोकोली हम तो खाते हैं काफी बार पास्ता वगैरह में, तो वो हमें पता है. टोमेट भी पता है. फेनॉइल, पुआरो, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट वंस. मैंने नाम तो लिखे हुए मेरे पास, बट वी नो द नेम्स आर क्वाइट अजीब. ओके, तो आप लोग ये सब क्या कर सकते हो, गूगल करके फोटो चेक कर सकते हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. एपी सर इश्यूज एट द ग्रोसरी शॉप. अब बात हो रही है ग्रोसरी शॉप में, ग्रोसरी शॉप. ठीक है, बोंजूर मदमुआजेल. तो स्टूडेंट यहाँ पे अब क्या आएगा, बोंजूर मदमुआजेल, गुड मॉर्निंग मैडम. व्हाट वो डेजिरे, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, आपकी इच्छा क्या है. अ किलो द फारिन, 1 किलो आटा. फारिन इज बेसिकली फ्लोर, इंग्लिश में फ्लोर बोलते हैं. अ किलो ऑफ फ्लोर. से पुर फेयर दला पातिसरी, इट इज टू मेक पेस्ट्री. नो दे क्रैप, नो पैनकेक्स, नो पैनकेक्स. तो ग्रॉसर ने पूछा, ग्रॉसर देखो स्टूडेंट्स, ये जो एपी सर है ना, वो ग्रॉसर है. ग्रॉसर ने पूछा कि आपको आपको ये क्या बोलते हैं,
पेस्ट्री बनाने के लिए चाहिए, तो उसने बोला नहीं नहीं पैनकेक बनाना है। तो दैट्स ऑल, से दैट्स ऑल। नो आई वुड ऑल्सो वांट अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। तो आपको ग्रोसरी शॉप में मिनरल वाटर भी मिल जाएगी, बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। ओके, तो आपको याद रखना है कौन से शॉप में क्या चीजें मिलती है। इंडिया जैसा नहीं कि एक ही शॉप में सब कुछ मिल जाए, है ना। एंड गोइंग विद द नेक्स्ट इज आला बुलॉन्जरी, बेकरी शॉप। बेकरी शॉप स्टूडेंट्स, तो ये बेकरी शॉप है, बुलॉन्जरी बेकरी शॉप। सो यहाँ पे लिखा है बोंजूर मदमुआजेल, गुड मॉर्निंग मैडम। अब आगे बिया क्विट मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? अ वेल अ वेल कुक्ड लॉन्ग ब्रेड, है ना, कुक्ड या क्या बोलते, बेक्ड, अ वेल बेक्ड, सॉरी, अ वेल बेक्ड लॉन्ग ब्रेड as always question mark. So yes, I would also want 4 croissant. Okay, I also want 4 croissant for the children. How much do I owe you? How much do I owe you मतलब मुझे आपको कितना पे करना है? उसने बोला 1 euro and 20 for the bagwe. Bagwe is basically a long bread. Okay, it's a famous French bread, and 4 croissant which is 6 euros. So total 7 euros and 20. परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है ग्रोसरी शॉप में क्या मिलता है, बेकरी शॉप में क्या मिलता है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। लास्ट इज बूशरी। बूशरी इज बेसिकली बचर शॉप। ओके, बचर शॉप, वो चिकन वगैरह सब मिलता है, ऐसा कुछ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बोनजूर मसियर, गुड मॉर्निंग सर, आई वुड विश अ चिकन ऑफ 2 किलो, अ चिकन ऑफ 2 किलो। देयर इट इज। डू यू वांट समथिंग एल्स? यस, 4 slices of white ham, 4 slices of white ham। ट्रॉन्च मतलब स्लाइस होता है। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स बूशरी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे, तो चलो, तो चलो। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ ओवर हियर कंप्लीट द बॉक्स, गिवन बॉक्स। इट सेज कंप्लीट द गिवन बिलो बॉक्स बाय रेफरिंग टू द प्रेसिडेंट डायलॉग्स। तो डायलॉग्स के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है स्टूडेंट्स हमें ग्रोसरी शॉप में क्या मिला था। तो जो जो चीजें अब तक हम लोग ने की है स्टूडेंट्स वो सारी चीजें लिखेंगे। द ला क्रैम था ना ग्रोसरी शॉप में, द ला क्रैम। मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ ताकि सब कुछ एक बार में सेट हो जाए। स्टूडेंट्स क्रैम में क्या आएगा, ई ग्राम आएगा यहाँ पर, ठीक है। और हमें याद है ग्रोसरी शॉप में यून, BOUTEIL, बुतेल द दो मिनरल था ना, और ई पे अक्यूट भी था स्टूडेंट्स। मार्केट में हमें क्या मिला था? मार्केट में तो बहुत सारी चीजें थी स्टूडेंट्स। हमें दे सित्रों, सित्रों मतलब नींबू थे। और फिर क्या था, दे पॉम द तेर भी था ना, पॉम द तेर भी था, दे पॉम द तेर। और क्या था अबे, और क्या मिला था हमें? दे शॉम्पिनियो भी था, शॉम्पिनियो। ये सब कुछ का आपको कहाँ मिल जाएगा? मार्केट में मिल जाएगा थोड़ी बहुत चीजें। चलो यार थोड़ा नीचे दिख रहा हो ताकि कुछ मिक्स नहीं हो। और क्या था, तोमात भी था स्टूडेंट्स, दे तोमात। ये सब आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट ब्रेड था, दे क्रुआसो। और एक क्या था, द ला बागवेट, बागवेट, बराबर ना स्टूडेंट्स। यून बागवेट भी लिख सकते थे, चाहिए आपको तो हमने ऊपर यून बागवेट और बागवेट था। क्रेमरी शॉप में तो ड्यूले, ऑफ कोर्स डेयरी शॉप थी ना। डेयरी शॉप में और क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट्स ये जो था यहाँ पर, यहाँ पे फारीन आ जाएगा, फारीन। हमने एपरी शॉप में फारीन था, फारीन, बराबर। यहाँ पे मैं फारीन लिख रहा हूँ। द फारीन इज बेसिकली आटा। क्रेम तो हमें कहाँ मिलेगा? डेयरी शॉप में मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो द ला क्रेम, ये आपको डेयरी शॉप में मिल जाएगा यूजुअली। और क्या था वहाँ पर? ड्यूले, द ला क्रेम, डेजर्फ, आपको अंडे भी मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, OEUFS। बूशरी शॉप, बूशरी शॉप में क्या था? चिकन ऑलरेडी दिया हुआ था। यूनत्रॉन्च, क्या था यहाँ पे? यूनत्रॉन्च द जॉम्बो, जॉम्बो इज बेसिकली हैम। हाँ, ठीक है, जॉम्बो ब्लॉन्ग दिया था, हैम था। तो ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा? बूशरी में मिल जाएगा। चलो, तो इतनी सारी चीजें हम लोग ने ऊपर नोटिस की थी स्टूडेंट्स, और वो हमने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी है। दैट्स ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ऑब्जर्व। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग को याद रखना, मैं आपको बता दूं, एक प्रोनाउन वाला पार्ट कर रहे हैं, प्रोनाउन ईएन। देखो यहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है प्रोनाउन ईएन। तो प्रोनाउन ईएन कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? जब भी हमने प्रीवियस चैप्टर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी किया था, इस चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं प्रोनाउन ईएन। तो इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? यू हैव टू लर्न द पार्टिटिव आर्टिकल फर्स्ट। पार्टिटिव आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ड्यू, दला, ड्यू, दला,
द ल एड ईएस। तो जब भी पार्टिसिपिव आर्टिकल आएगा स्टूडेंट्स, या कोई भी क्वांटिटी होगी स्टूडेंट्स, हमेशा उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? प्रोनाउन ईएन से। यू कैन सी ओवर हियर, आशिते वुड यू जॉम्बो, आर यू बाइंग सम हैम? तो आई एम बाइंग 3 स्लाइसेस ऑफ इट। तो जो ईएन है स्टूडेंट्स, उसका ईएन का मीनिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पर इसका मीनिंग होता है ऑफ इट। ओके, फिर डू यू बाय सम क्रीम? यस, आई एम बाइंग 50 grams ऑफ इट। आर यू बाइंग एग्स? आई एम बाइंग अ डजन ऑफ इट। आर यू बाइंग मिनरल वाटर? यस, आई एम बाइंग अ लिटर ऑफ इट, अ लिटर ऑफ इट। तो इसमें सबका ईएन का इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे ऑफ इट आ रहा है, और जब भी पार्टिसिपिव आर्टिकल होगा उसको हमें रिप्लेस ईएन से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें फिर से कॉन्वर्सेशन दिया है, आई एम गोइंग टू रीड द कॉन्वर्सेशन फॉर यू गाइस। आई एम लर्निंग टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। अभी हमें क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस करनी है? ओके, सो द केक इज नॉट गुड, इट इज टू ड्राई। द केक इज नॉट गुड, इट्स टू ड्राई। सॉरी सर, वो voulez un peu de crème caramel? Do you want a little caramel cream in order to accompany it? Question mark. Do you want a little of? यहाँ पे क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स? अ मतलब a little of, a little of. The words of quantity, तो स्टूडेंट्स देखो, अ मतलब क्या होता है? a little of. कैल का मतलब सम होता है। बोकू का मतलब a lot of, बोकू का मतलब a lot of. Ilya, throw the circulation. There is too much of traffic during the peak hours. During the peak hours, very important. The word peak hours. So throw the मतलब too much of. Okay, तो ये सब स्टूडेंट्स क्या है? इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। आपको चाहिए तो लिख लो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ओके, अगेन स्टूडेंट्स दे हैव गिवन अस some vocabularies. Je voudrais means I would wish. I would wish some coffee, a little coffee, a lot of coffee. है ना? वन वेन कैनॉट काउंट। दोस्तों अगर हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो हम पार्टिसिपिव आर्टिकल यूज करते हैं, हम क्वांटिटी जो स्पेसिफाई नहीं हो सकती। और इमेजिन अगर हम काउंट कर सकते हैं, वन कैन काउंट, तो आई वांट अ नोटबुक, 2 और 3 नोटबुक्स। तो अगर हम स्पेसिफिकली काउंट कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं 2 3। आई वांट सम नोटबुक्स, आई वांट अ लॉट ऑफ नोटबुक्स। चलो ग्रेट। जनरल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरल चीजें अगर होगी एकदम, तो हम यहाँ पे, और जो क्वांटिटी इम्प्रेसाइज, जो क्वांटिटी इम्प्रेसाइज नहीं कर सकते। देखो, अगर आपको स्पेसिफिक पता है तो आप डेफिनेट आर्टिकल डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? ल ला ल ले, व्हेन यू आर श्योर ऑफ इट। बट जब आपको क्वांटिटी नहीं पता है, जैसे मैं चावल खा रहा हूँ, मैं कितने चावल खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग सम राइस, मुझे थोड़ा पता मैं कितने चावल खा रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स पार्टिसिपिव आर्टिकल यूज करूंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पक्का पता है तो डेफिनेट आर्टिकल, और आपको श्योर नहीं है तो पार्टिसिपिव आर्टिकल। सही है, बहुत आसान था ये, तो बहुत आसान था। लेट्स रीड। ही लव्स द वाइन, उसको एकदम श्योर है, ही लव्स द वाइन, इट्स द लव। तो whenever in English also the, so you have to replace it by definite article. The money does not give happiness, and the cream is excellent, the cream is excellent. तो इंग्लिश में ल ला ल ले का इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? ध होता है, व्हेन यू आर श्योर ऑफ इट, ध। अब पार्टिसिपिव आर्टिकल, he is drinking some wine, he is drinking some wine. So when you are not sure of it, you use the word some in English. और यहाँ पे मैस्कुलिन है तो du आएगा। शी wants some love, उसे कुछ प्यार चाहिए। I want some money to buy DVD, to buy this DVD. I want some money, and I want some chocolate cream. I want some chocolate cream. और आपको पता होना चाहिए मैस्कुलिन के लिए कौन सा यूज हो रहा है, फेमिनिन के लिए कौन सा यूज हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको पता अच्छे से होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है? पार्टिसिपिव आर्टिकल व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, डेफिनेट आर्टिकल व्हेन यू आर श्योर ऑफ इट। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर का जो मेजर पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आई एम रिवाइजिंग व्हाट आई हैव जस्ट लर्नड। तो अभी हमने वही चीज जो हमने लर्न की है वो हम अब क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स रिवीजन शुरू करेंगे अब हम। सबसे फर्स्ट क्या है? कंप्लीट द फ्रेज विद द गिवन वर्ड्स। क्वांटिटी है यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो आपको चाहिए तो आप लोग उसका मीनिंग पहले लिख लो अच्छे से, आपको मीनिंग सबका पता होना चाहिए। बोकू द, अ लॉट ऑफ। बोकू द का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? अ लॉट ऑफ, बराबर है। नेक्स्ट आफ्टर दैट, पर द, बोकू द और पर द ऑपोजिट है। पर द लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ। अ पर द, अ लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ। आ से द, इनफ ऑफ। थ्रो द, टू मच ऑफ। तो इसमें कोई खास फर्क नहीं, आप पर द लिखो या अ पर द लिखो, आपको ये क्वेश्चन आया होगा मन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मो काफे नेपा बो, माई कॉफी इज नॉट गुड, माई कॉफी इज नॉट गुड, तो क्या लिखेंगे? आजुद अ द सुक्र, अ द सुक्र, अ लिटिल ऑफ शुगर, एड अ लिटिल ऑफ शुगर। Ah, no, je ne veux pas aller à la piscine maintenant. No, 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 I don't want to go to swimming pool now. Je ne veux pas, I don't want to go to the swimming pool now. Why? Il y a dash.
तो यहाँ पे मैं बोकू द मॉन लिखूँ, बोकू द मॉन, लॉट ऑफ पीपल, BEAUCOUP, बोकू द मॉन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल on Wednesday afternoon. There are a lot of people on Wednesday afternoon. Okay. After that, third one, moi, me. No, merci. No, thank you. Me, no, thank you. Je ne peux pas aller au cinéma. I cannot go to cinema this afternoon. Why? What is it? What is there? What is there? ये डैश दवाई, तो आई हैव अ डैश वर्क, तो स्टूडेंट्स अभी उसके पास काम है, ऑब्वियसली बहुत सारा काम, तो थ्रो द लिख रहा हूँ। आई हैव टू मच ऑफ वर्क, थ्रो द, आप कुछ भी यहाँ पे बोकू द लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई हैव टू मच ऑफ वर्क टू डू, आई हैव टू मच ऑफ वर्क टू डू। Tu connais Maya? Do you know Maya? Question mark. Do you know Maya? No. Qui est ça? Who is this? So this is a new student in the college. She seems sad. She has Ella Perdami. Ella Perdami. A little of, yeah, she has little friends. She has less friends. तो खाली पर्दा इंडक्शन लेस फ्रेंड्स हो गया. She has less friends. पर्दा. अपर्दा, तो यहाँ पे आपको मीनिंग लेता हूँ, आप मीनिंग भी लिख सकते हो. अपर्दा, अ लेस ऑफ तो नहीं हो सकता, अ लिटिल ऑफ. अपर्दा, अ लिटिल ऑफ, और खाली पर्दा मतलब लेस. ग्रेट. तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 विद द एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पार्ट वी हैव फिनिश्ड. मूविंग फॉरवर्ड टू पेज, सो वी हैव कंप्लीटेड 100 पेजेस. ग्रेट क्लैप फॉर मी. सेंचुरी 100 पेजेस कंप्लीट कर दिए, बहुत बड़ी बात है. चलो, फैज आशा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ वापस वोकैबुलरीज दी उन्होंने हमें. लेट्स रीड. Vous avez du jambon? Do you have some ham? Do you have cream? Do you have oil? Do you have eggs? तो आपने नोटिस किया, क्रैम मैस्कुलिन फेमिनाइन है इसलिए डला, जॉम्बो है मैस्कुलिन इसलिए डी यू, ऑयल फेमिनाइन वॉवल से स्टार्ट होता है इसलिए DEL अपोस्ट्रोफ, एंड फाइनली ऑफ एग्स है प्लूरल है तो DES. तो नाउन के अकॉर्डिंगली आर्टिकल भी चेंज होते हैं स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. प्रोनाउन यूज करना है. आंसर बाय यूजिंग प्रोनाउन EN. तो प्रोनाउन EN, तो प्रोनाउन कैसे डालेंगे स्टूडेंट्स? नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन डालेंगे. ओके, फर्स्ट वन, vous avez acheté, did you buy some camembert? So yes, I bought some of it. I bought some of it. Second one, est-ce que vous avez de l'eau minérale? Is it that you have mineral water? तो मैं लिखूंगा yes, j'en ai. Yes, I have it. ऐसा कुछ आएगा स्टूडेंट्स, I have it. Yes, I have. प्रेजेंट टेंस यूज किया, मैं भी प्रेजेंट टेंस यूज करूंगा. ठीक है, एग्जाम्पल में उन्होंने पासे कंपोज यूज किया, तो आंसर में भी पासे कंपोज था. फर्स्ट वन उन्होंने प्रेजेंट टेंस दिया, मैंने भी प्रेजेंट टेंस यूज किया. सेकंड वन, est-ce que ta cousine Nathalie boit du vin rouge? Is it that your cousin Nathalie drinks red wine? तो नो लिखना है. नो, ma cousine Nathalie, नो, नो ना, तो एन अपोस्ट्रोफ आ जाएगा. अभी मुझे en डालना है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. नो बुआ पा, नो बुआ पा. नो, माय कजिन Nathalie does not drink it. Okay, तो en की प्लेसमेंट आएगी बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. थर्ड वन, est-ce que votre professeur fume des cigares? Is it that your professor smokes cigarettes, a cigar? No, mon professor no fume pas. Perfect. Placement before the conjugated verb. Okay. Next after that, il vous reste encore de l'argent. तो सुनो इसका मीनिंग क्या है? You still have money left. You still have money left? Question mark. तो आंसर क्या आएगा? No. Il ne. vous का नु हो जाएगा. Il ne nous और en का आएगी बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. रेस्ट प्लू. इल न नु और रेस्ट प्लू. तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देख लो क्या लिखा हुआ है. यू स्टिल हैव मनी लेफ्ट. तो नो वी डोंट हैव एनी लेफ्ट. वी डोंट हैव एनी लेफ्ट. और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर? देखो, ऑंकोर दिया था. ऑंकोर मतलब स्टिल, तो ऑंकोर का ऑपोजिट क्या होता है? न प्लू. तो नेगेटिव करना है तो उसका नेगेटिव स्टूडेंट्स न प्लू हो जाएगा, बिकॉज स्टिल का नो लॉन्गर होता है. और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वू था वो नू बन गया, बिकॉज वी हो गया ना. वी डोंट हैव मनी एनीमोर, ऐसा कुछ. और en आएगा बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. en हमेशा पार्टिसिपल आर्टिकल आएगा तो उसको रिप्लेस en से करते हैं. ओके, देखो यहाँ पे किस किस को रिप्लेस किया मैं अंडरलाइन करता हूँ. देखो जहाँ भी पार्टिसिपल आर्टिकल प्लस नाउन होता है उसको हमें रिप्लेस करना होता है. इन सब चीजों को मैंने रिप्लेस कर दिया है, मैंने इनको निकाल दिया है. तो जो भी पार्टिसिपल आर्टिकल आएगा उन प्लस नाउन, उसको हम निकाल के किससे रिप्लेस कर देंगे? उसको हम निकाल के रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन en से. ठीक है, मूविंग विद द लास्ट वन. इज इट दैट योर पेरेंट्स ईट मीट? तो यस, mes parents en mangent. Yes, my parents eat it. Simple.
तो इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, पार्टिसिपिव आर्टिकल प्लस नाउन को रिप्लेस करना है प्रोनाउन ईएन से, और प्रोनाउन ईएन की प्लेसमेंट हर एक जगह थी बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, नाउ थर्ड वन, कॉन्जुगेट द वर्ब अकॉर्डिंग टू गिवन एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स देखो एग्जांपल में उन्होंने हमें क्या दिया है, प्रेजेंट कंडीशनल टेंस, वही तो पढ़ा है हमने इस चैप्टर में। पूरिये, कुड यू गिव मी योर मोबाइल नंबर, क्वेश्चन मार्क। कैसे पता चला, रूल है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस फ्यूचर स्टेम एंड एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे, एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे, ये रूल है। तो आपको ये रूल याद रखना है। एंड क्योंकि ये सिर्फ दो ही वर्ड है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने बीच में एंड लिखा है, फ्यूचर स्टेम एंड एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एमेर वर्ब दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AIMERAIS, जेमरे, आई वुड लव टू मीट द डायरेक्टर एज सुन एज पॉसिबल। जेमरे rencontre the director le plus vite possible, I would love to meet the director as soon as possible। सेकेंड वन, वुलवार वर्ब है स्टूडेंट्स, अब वुलवार एक्सेप्शन है, VOUDR हमने किया था इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में, और एंडिंग्स आएंगे IONS। वी वुड विश टू सिट नियर द विंडो, वी वुड विश टू सिट नियर द विंडो। थर्ड वन, क, वुलवार वर्ब अगेन, VOUDR वापस से, और IEZ आएगा, IEZ। क वुद्रियेवु, what would you want to drink this evening, what would you wish to drink this evening, want भी बोल सकता हूँ या wish भी बोल सकता हूँ। एंड फोर्थ वन, पुवार का एक्सेप्शन किया, POURR, और फिर AIS, पूरे, पूरे ट्यूब में envoyer la liste des élèves, could you send me the list of students, could you send me the list of the students। ग्रेट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया है, और आगे बढ़ेंगे। शास लेंस टू मतलब ऑड मैन आउट, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ऑड मैन आउट फाइंड करना है हमें, ऑड मैन आउट फाइंड करना है। हाँ चला गया, ओके, ऑड मैन आउट, चलो क्या हो रहा है ये, ऑड मैन आउट, ओके। बुलॉन्जरी, एपिसरी, क्रेम है, तो स्टूडेंट्स बूशर आएगा, बिकॉज बाकी तीनों, तीनों क्या है, शॉप्स के नाम है, बाकी सब शॉप के नाम है। देखो बुलॉन्जरी क्या है स्टूडेंट्स, बुलॉन्जरी एक बेकरी शॉप है, एपिसरी ग्रोसरी शॉप है, क्रेमरी डेयरी शॉप है। खाली बूशर, तो स्टूडेंट्स बूशर क्या है हमारा, बूशर एक बेकर है, कोई इंसान होगा, ठीक है, बाकी सब शॉप के नाम है, तो हमारा आंसर है बूशर। ओके, तो आंसर है बूशर। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट क्रुआसॉ, ये भी हमको कहाँ मिलता है, डेयरी शॉप में मिलता है। टोमाट वेजिटेबल है, टोमेटो पे ब्रेड है, और बागवेद लॉन्ग ब्रेड। तो स्टूडेंट्स आंसर टोमाट आएगा, बिकॉज टोमाट एक वेजिटेबल है, ओके, और वो वेजिटेबल है, और बाकी सब स्टूडेंट्स बेकरी शॉप में मिलने वाली आइटम है, तो आंसर इज टोमाट। शुगर है, फारिस फ्लोर, मिनरल वाटर एंड ले, तो स्टूडेंट्स आंसर मुझे लग रहा है मिल्क आना चाहिए, बिकॉज मिल्क डेयरी शॉप में मिलता है, बाकी सब आपको ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। ओके, तो आंसर इज मिल्क। एंड गोइंग विद द लास्ट वन, गोइंग विद द लास्ट वन, फ्रेज मतलब स्ट्रॉबेरीज, पतीपुआ मतलब ग्रीन बीन्स, बनानास और ऑरेंजेस, तो स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए पतीपुआ, वापस वो वेजिटेबल है, बाकी सब तो हमारे फ्रूट्स के नाम थे। ओके, चलो ग्रेट, तो यहाँ पे हमारा ऑड मैन आउट भी कंप्लीट हो गया है। मूविंग फॉर द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, ट्रू ला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स उन्हें हमें आंसर दिए, हमें अब क्वेश्चन पूछना है। वाओ, साकुत कॉम्बिया, तो कॉम्बिया साकुत 50 यूरो, दैट कॉस्ट 50 यूरोस, तो कॉम्बिया साकुत लिख रहा हूँ, कॉम्बिया साकुत, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो सा के नीचे जो उन्होंने दिया है वो हम भी करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ, ठीक है। सेकंड वन, je voudrais acheter du Roquefort, I would wish to buy Roquefort, तो हम पूछेंगे विच चीज, quel fromage, और उल्टा हाइफन, जब भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करने का, सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो quel fromage, VOUDRAIS, voudrais tu acheter, क्वेश्चन मार्क, बराबर स्टूडेंट्स, quel fromage do you want या do you wish to buy। थर्ड वन, Jean et acheté, I bought it, का का आशिते वो आशिते, व्हाट आर यू बाइंग, आई एम बाइंग, नहीं आई बाइंग, तो मैं पूछ रहा हूँ डिड यू बाय, या उन्होंने पासे कंपोज किया, हम भी पासे कंपोज, आवे वो आशिते क्वेश्चन मार्क द ला फारीन क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा डिड यू बाय, उन्होंने कौन सा टेंस दिया, पासे कंपोज, मैंने पासे कंपोज यूज किया। क्वेश्चन डिड यू बाय फ्लोर, तो उसने बताया
आई बॉट इट। तो स्टूडेंट्स उन्होंने en दिया था, तो मुझे पार्टिटिव आर्टिकल प्लस नाउन लिखना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, पार्टिटिव आर्टिकल प्लस नाउन को en से रिप्लेस कर रहे थे। अब en दिया है तो हमने पार्टिटिव आर्टिकल प्लस नाउन डाल दिया, उल्टा कर दिया, बस, सो इजी। Fourth one, Il y a trois gâteaux dans le frigo. There are three cakes in the fridge. There are three cakes in the fridge. तो लिखे combia. Combia the GATEAUX gâteau. How many cakes are there ना, तो इलिया का या तिल कर देंगे, या तिल। How many cakes are there dans le frigo? Question mark. In the fridge. How many cakes are there in the fridge? A के ऊपर circumflex आएगा। Great. So there are three cakes in the fridge. And last, she prefers coffee. She prefers, तो कैस कैल है ना, हम उल्टा एफ क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो फिर हम लोग ऐसा का प्लस अफर्मेटिव भी लिख सकते हैं। तो कैस कैल प्रेफर, प्रेफर में स्टूडेंट्स माउंटेन होता है, एक ई अक्यूट और एक ई ग्राव, ठीक है। तो व्हाट इज शी बाइंग, व्हाट डज शी प्रेफर, तो शी प्रेफर्स कॉफी। व्हाट डज शी प्रेफर, शी प्रेफर्स कॉफी। तो बच्चे लोग यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। काफी सही मजा आई स्टूडेंट्स ये चाले चैप्टर को कंप्लीट करने में भी। द चैप्टर वाज क्वाइट इजी। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को सब कुछ समझा हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। काफी सारे बच्चे लोग वीडियोस देखते हैं पर वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यू लाइक द वीडियोस, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू हैव रियली लाइक्ड इट। सारे फ्रेंड्स को बता दो, अरे बहुत सही वीडियो बन रहे हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही भेज दो इस बार तो, ठीक है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, यू हैव माय नंबर ऑन द डिस्क्रिप्शन इफ यू विश to contact me and to get some personal tuitions or something like that. We can work out on that as well. आपके एग्जाम्स के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, अलग अलग नोट्स चाहिए आपको, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू आउट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।